Hello everyone and welcome to today's session. Myself Bharat Rathod from Ahmedabad branch and I am serving in our firm Pradeep S. Jain and Associates since 2003. We are having our head office located at Jodhpur and branch office at Ahmedabad. Under the guidance of CA Pradeep Jain sir, it is our honor to conduct this webinar. We hope all our viewers are safe and taking care of themselves. I will just give you a brief introduction of our presenter. This webinar related to recent advance ruling and judgments in GST is taken by the CA Preksha Jain. With our presenter for the day comes with a wealth of knowledge in indirect taxation, having experience of more than 3 years. She has an in-depth knowledge of GST. Presently, she is involved in conducting internal and statutory audit under GST. She is also engaged in handling advisory, legal, and litigation matters along with day-to-day compliance work in GST. Moreover, she is actively engaged in deliberations with respect to various practical issues and challenges faced by taxpayers in GST. She is also a regular writer and her articles have been published on various renowned sites like Taxman, Santax Publication, Tax Guru, etc. Apart from pursuing her profession, she is also kind-hearted and active participate in various NGOs. We also have 10 minutes for answering any queries of our attendees. If you have any queries, you can post it in question and answer section appearing on your screen. I would like to give my regards once again to CA Pradeep Jain sir. So let us begin the webinar and now I hand over the session to CA Preksha Jain. Thank you. Good afternoon, all. As we already know that we are locked down in our houses due to the pandemic COVID-19. So this is a small question from our side to enhance your knowledge about the different advanced rulings and the court judgments being passed by the different GST authorities in GST recently. आई होप दैट आप सब अपने घर पे बैठे हैं और सेफ हैं और घर बैठे ही सारा कुछ अपना काम देख रहे हैं. We shall start with what is advance ruling. जो डिफरेंट डिसीजंस आ चुके हैं, किस बेसिस पे डिसीजंस दिए गए हैं, व्हाट ऑल प्रोविजंस हैज बीन डिस्कस्ड. Now in the last we will be having a small question and answer interactive section. In case आपको कोई भी doubt हो तो you can ask us in the end freely. Now we shall proceed with what is advance ruling. I would like to ask a simple question to you. कोई भी डाउट होता है तो आप किसके पास जाते हैं? Obviously जो आपसे ज्यादा बेहतर समझ सके उस पर्टिकुलर फील्ड में. वैसे ही एडवांस रूलिंग है हमारे जो भी टैक्स पेयर्स हुआ वर्किंग who are transacting their goods and services in GST, उन्हें कोई भी tax related matters है, then they can proceed to advance ruling. Now, advance ruling किन cases में ली जा सकती है? पहले we shall discuss about that. For example, I am dealing in certain types of goods or services और मुझे इसकी classification से related कोई भी doubt है. Classification किस टर्म्स में कहा जा सकता है, जैसे कि उसके HSN कोड कौन सा एप्लीकेबल है, SCC कोड कौन सा लगना चाहिए, या फिर कोई भी क्लासिफिकेशन कोई भी तरह का क्लासिफिकेशन से रिलेटेड डाउट हम पूछ सकते हैं एडवांस रूलिंग लगाकर. सेकेंडली, कोई भी तरह का नोटिफिकेशन, फॉर एग्जांपल जैसे एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन आते हैं, आरसीएम एप्लीकेबिलिटी के नोटिफिकेशन आते हैं, तो उस तरह के रिलेटेड में कोई भी एप्लीकेंट लगा सकता है उसमें एडवांस रूलिंग इन केस ही इज हैविंग अ डाउट वेदर दैट नोटिफिकेशन is applicable to the transactions he is undertaking in GST or not. Thirdly, कोई भी टाइम या फिर वैल्यू ऑफ सप्लाई से रिलेटेड हमें कोई भी डाउट है, एसएससी को डाउट है, तो वो भी एडवांस रूलिंग से पूछा जा सकता है. अब टाइम और वैल्यू ऑफ सप्लाई में मैं ब्रीफ में करना चाहूंगी उससे रिलेटेड कैसे कैसे डाउट आ सकते हैं. वैल्यू ऑफ सप्लाई में जैसे कि हम जानते हैं कि कंपोजिट सप्लाई
का एक प्रोविजन है जीएसटी के अंदर, वो वैल्यू ऑफ सप्लाई में कैसे हिट करता है। फॉर एग्जांपल मैं कोई भी गुड्स सेल कर रही हूँ तो फ्रेट, इंश्योरेंस, इन टाइप के सारे ट्रांजेक्शन्स एक एंसिलरी एक्सपेंसेस होता है जो कि मुझे ऐड ऑन करके और फिर वैल्यूएशन करना होता है। अब ये तो एक सिंपल सा एग्जांपल है, ऐसे मल्टीपल एग्जांपल्स हो सकते हैं जिसमें कि एंसिलरी एक्सपेंसेस shall make a part of my basic value or not। मैं अगर गुड्स में डील कर रही हूँ तो उससे रिलेटेड कोई भी एक्सपेंसेस मुझे वैल्यूएशन में हिट करना है या नहीं करना है, कौन से टाइप का रूल अप्लाई होगा मेरे वैल्यूएशन में, ओपन मार्केट वैल्यू, सिमिलर काइंड का, या फिर 110% ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब टाइम ऑफ सप्लाई के बारे में बात करेंगे तो टाइम ऑफ सप्लाई में ऐसा है कि मुझे एडवांस पे कोई टैक्स पेमेंट करना बनता है, नहीं बनता है, इनवॉइस मुझे कब इश्यू करनी है, उससे रिलेटेड कोई भी डाउट यू कैन आस्क टू एडवांस रूलिंग। Fourth, ITC. Obviously, we all are aware of the word ITC. ITC में particularly section है 17.5. 17.5 talks about the blockage of ITC. assessee किन केसेस में ITC लेने के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो ये एक मैं पर्टिकुलर सेक्शन बता रही हूँ। अगर आईटीसी रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप एडवांस रूलिंग के पास जा सकते हैं। फिफ्थली, कोई भी टैक्स लाइबिलिटी के लिए मैं उसके लिए डिटरमाइन करना चाहती हूँ, कोई इसके केस में मुझे टैक्स लाइबिलिटी का कितना पेमेंट करना है, मुझे करना भी है या नहीं करना इस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन में, तो मैं उसके लिए भी एडवांस रूलिंग के पास जा सकती हूँ। फिफ्थली, कोई भी रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड क्वेरी है, वेदर आई एम क्रॉसिंग द थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ 20 lakhs या 10 lakhs इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन स्पेशल कैटेगरीज ऑफ स्टेट्स, या फिर मुझे मैं एग्जाम्प्ट में डील कर रही हूँ और कुछ पोर्शन का मैं टैक्सेबल में डील कर रही हूँ, तो उससे रिलेटेड मुझे रजिस्ट्रेशन के लिए क्वेरी हो गई, या मैं एजेंट हूँ, कोई भी तरह की क्वेरी रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड हम एडवांस रूलिंग से पूछ सकते हैं। लास्टली, सेक्शन 7 वी ऑल नो दैट व्हाट इज सप्लाई, उसके बारे में बताता है। या फिर सप्लाई से रिलेटेड कोई भी क्वेरी, सेक्शन 7 इज एप्लीकेबल टू दैट पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन और नॉट, वेदर माय सप्लाई इज फॉलोइंग अंडर शेड्यूल 1 और शेड्यूल 3, और भी तरह की कोई भी क्वेरी सप्लाई से रिलेटेड हम पूछ सकते हैं एडवांस रूलिंग में। ये इन टाइप अभी मैंने डिस्कस किया कि किन केसेस में वी कैन गो टू एडवांस रूलिंग। अब मैं एक और चीज डिस्कस करना चाहूंगी कि जो एडवांस रूलिंग है वो किन केसेस में हम ले सकते हैं, ये मैंने डिस्कस किया। अब मैं डिस्कस करूंगी कि उन ट्रांजैक्शंस में ले सकते हैं क्या जो हमने ऑलरेडी अंडरटेकन कर चुके हैं। मैं एग्जांपल से समझाना चाहूंगी। फॉर एग्जांपल, मिस्टर एक्स है, वो रबर में डील करते हैं, ट्रेडिंग ऑफ गुड्स करते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए बोल रही हूँ कि उनके 18% लगना चाहिए और उन्होंने मिस्टेकनली 12% लगा लिया, या फिर उन्हें वो ध्यान नहीं था कि उनके 18% लगता, उन्होंने 12% लगा लिया। तो अब इस केस में वो ऑलरेडी लगा चुके हैं, उन्होंने इनवॉइस भी लगा दिया, इनवॉइस भी कस्टमर्स को भेज दिया है। तो अब इस केस में जो ट्रांजैक्शंस ऑलरेडी अंडरटेकन हो चुके हैं, उस केस में क्या एडवांस रूलिंग ली जा सकती है, या फिर उसी केस में ली जा सकती है जो ट्रांजैक्शंस होने वाले हैं। तो ये क्लैरिफाई ऑलरेडी किया जा चुका है सेक्शन में कि एडवांस रूलिंग कैन बी टेकन on the proposed transactions as well as the transactions which are already undertaken by the taxpayers. Now, I will be discussing about the different relevant adjudicating authorities जो involve है advance ruling mechanism में. At present, दो authorities involved है that are AAR and AAR. Firstly, we have to file our advance ruling application to AAR. In case we are dissatisfied with the decision of AAR, then we can appeal to AAR against the decision of AAR. अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि कैसे हम एडवांस रूलिंग में एप्लीकेशन लगा सकते हैं। ऑनलाइन एक सिंपल सा फॉर्म है GST ARA 1 करके, 5000 की फीस से आप ऑनलाइन एप्लीकेशन लगा के वो जो फीस है उसका पेमेंट करके आपकी एडवांस रूलिंग लग जाएगी। अब एक और क्वेश्चन ये अराइज होता है कि इन केस AAR के बाद जाने के बाद भी मैं उनके से सेटिस्फाइड नहीं हूँ जो उन्होंने डिसीजन दिया है,
तो मुझे क्या करना चाहिए एज अ टैक्स पेयर इस केस में? इस केस में मेरे पास एट प्रेजेंट यही सोल्यूशन है कि आई कैन फाइल रिट पिटीशन टू हाई कोर्ट, writ petition, or I can file appeal to High Court and then Supreme Court respectively. So in the last year, GST Council has recommended to formulate NAAAR. What is NAAAR? In case I am dissatisfied with the decision of AAAR, I can file my appeal to NAAAR. लेकिन कुछ रीजंस की वजह से दिल्ली हाई कोर्ट ने स्टे कर दिया था इसके फॉर्मुलेशन पे। जब द इनिशियल रीजन व्हाई व्हिच आई गेट टू नो दैट कि उनके कॉन्स्टिट्यूशन में कोई इशू था। एट प्रेजेंट भी डबल ए और ट्रिपल ए आर में जो सारा कुछ कॉन्स्टिट्यूशन है वो रेवेन्यू मेंबर्स का है, जुडिशियल मेंबर्स नहीं है। इसीलिए 80% जो भी रूलिंग्स आ रही है वो रेवेन्यू बेस्ड आ रही है। ये आगे जाके दिक्कत ना हो एन ट्रिपल ए आर में एसएससी को, इसीलिए दिल्ली हाई कोर्ट ने जीएसटी काउंसिल को और गवर्नमेंट को ये बोला है कि आप पहले इसमें मॉडिफिकेशंस लेके आइए कॉन्स्टिट्यूशन में, फिर ही इसके फॉर्मुलेशन पे बात की जाएगी। आई होप दैट आपको एडवांस रूलिंग का बेसिक स्ट्रक्चर सारा कुछ समझ आ गया होगा। अब मैं नेक्स्ट बढ़ना चाहूंगी अपनी पहली एडवांस रूलिंग पे। पहली एडवांस करना चाहूंगी अपनी पहली एडवांस रूलिंग के, दैट इज अबाउट द मेसर्स कार्डिस इंडिया स्टोरेज सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। द रूलिंग वाज गिवन बाय AAR Karnataka. I will brief you about the applicant, what type of transaction he is involved in, what kind of issues he was facing while transacting, and other related matters. Now, what are the brief facts about the applicant? Applicant is basically importer. Importer था जो कि मशीन पार्ट्स इंपोर्ट करता था आउट ऑफ इंडिया से और फिर डोमेस्टिक सेल करता था अपने इंडिया में ही। अब इशू क्या आ रहा था कि पहले वो कर्नाटका में उसकी रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस थी, तो वो कर्नाटका के नियरेस्ट पोर्ट ऑफ इंपोर्ट पे इंपोर्ट करके फिर आगे जहाँ पे भी उन्हें सप्लाई करना था, वेदर इट इज इंटरस्टेट या इंटरस्टेट डिफरेंट स्टेट में करना था, सेम स्टेट में करना था, तो अपने कर्नाटका से वो आगे फिर ट्रांसपोर्ट करते थे। तो इस वजह से उन्हें क्या हो रहा था कि उनकी जो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ गई थी। तो उनके मन में ये आया कि क्यों ना जहाँ पे कस्टमर मेरा है मैं वहीं पे ही उसके जो नियरेस्ट लोकेशन है वहीं पे ही पोर्ट ऑफ इंपोर्ट जो भी नियरेस्ट है वहां पे इंपोर्ट करके और फिर वहीं से उसको आगे ट्रांसपोर्टेशन कर दूं, उससे मेरा खर्चा भी बचेगा और प्लस सहूलियत भी रहेगी मेरे लिए। तो उसमें इशू ये आया कि मैं कर तो सकता हूँ मैं कि पोर्ट ऑफ इंपोर्ट पे लाके और मैं डायरेक्टली उधर कस्टमर के वहां पे सेल कर दूं बिना अपने रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस पे मंगवाए। तो क्या इस केस में मैं आईजीएसटी लगा के या फिर कोई भी आईजीएसटी लगा के मैं इनवॉइस रेज कर सकता हूँ बिना वहां पे पोर्ट ऑफ इंपोर्ट जो स्टेट में है वहां का रजिस्ट्रेशन लिए? तो इस केस में एप्लीकेंट ने क्या कंटेंट किया कि जो एज पर सेक्शन 13 लोकेशन ऑफ इंपोर्टर क्या मानी जाती है? लोकेशन ऑफ इंपोर्टर मानी जाती है जहाँ पे इंपोर्टर बिल ऑफ एंट्री फाइल करता है और जहाँ पे उसकी रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस है। अब इस केस में will now be recorded. इस पर्टिकुलर केस में एज पर एप्लीकेंट व्हाट शुड बी द प्लेस ऑफ सप्लाई? प्लेस ऑफ सप्लाई वो तो नहीं हो सकती जहाँ पे हर पोर्ट ऑफ इंपोर्ट है, सब्जेक्ट टू अगर इन केस हर पोर्ट ऑफ इंपोर्ट जहाँ पे भी लोकेटेड है स्टेट में मेरा डिफरेंस रजिस्ट्रेशन ले रखा है स्टेट वाइज, तो मैं मान सकती हूँ कि वो प्लेस ऑफ सप्लाई है। पर इन दिस केस क्योंकि कार्डेक्स का कर्नाटका में ही रजिस्ट्रेशन था, तो क्या मैं मान सकती हूँ कि कर्नाटका ही मैं प्लेस ऑफ सप्लाई मान लूँ? यस ऑब्वियसली, क्योंकि उसका प्लेस ऑफ रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस उसका वहां है, वो वहीं से ही बिल ऑफ एंट्री सप्लाई कर रहा है और उसकी रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस भी वही है। तो इस केस में जो प्लेस ऑफ सप्लाई है मेरी मानी जाएगी जो रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस प्रीमाइसेस है ऑफ एसएससी। अब सेकेंडली ये मैं पूछना चाहूंगी कि सेक्शन 7(2) के हिसाब से इंपोर्ट कब माना जाता है? जैसे ही मेरी कस्टम फ्रंटियर जो है कि क्रॉस कर चुकी है तो माना जाएगा कि वो मेरा इंपोर्ट ऑफ गुड्स है और इंटरस्टेट ऑफ सप्लाई है। तो ठीक है, अब मैं प्रोसीड करना चाहूंगी कि एडवांस रूलिंग में किस हिसाब से डिसीजन दिया गया, वेदर इट वाज इन फेवर ऑफ एसएससी और अगेंस्ट द एसएससी।
डिस्कस कि उन्होंने कहा कि सेक्शन 13 के हिसाब से लोकेशन ऑफ इंपोर्टर क्या मानी जाएगी। लोकेशन ऑफ इंपोर्टर मानी जाएगी प्लेस ऑफ रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस प्रीमाइसेस ऑफ एसएससी दैट वाज कर्नाटका। तो उन्होंने एडवांस रूलिंग में यही बोला कि उन्हें हर पोर्ट ऑफ इंपोर्ट में रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। दे कैन raise the invoices whether it is IGST or CGST or SGST फ्रॉम देयर रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस, और वो डिलीवरी प्लेस डाल सकते हैं पोर्ट ऑफ इंपोर्ट की और बिलिंग कर सकते हैं डायरेक्टली कस्टमर को। उन्हें हर प्लेस और हर स्टेट में रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है, और जो भी वो पेमेंट कर रहे हैं आईजीएसटी का इन केस ऑफ इंपोर्टेड गुड्स, वो उसी क्रेडिट लेने के लिए लायबल भी है, और प्लस रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है, जैसा कि मैंने डिस्कस किया। तो ये फेवरेबल डिसीजन था जिस केस में मैं इसका ट्रक्स बताना चाहूंगी कि इस केस में क्या हुआ कि जो भी इंपोर्टेड गुड्स था, अगर पोर्ट ऑफ इंपोर्ट से डायरेक्टली कस्टमर के प्लेस पे आ रहा है विदाउट रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस प्रीमाइसेस से जाने के बजाय डायरेक्टली अगर ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो वो आईजीएसटी या फिर सीआरएस लगा के जो भी कॉरेस्पॉन्डिंग है, अगर आउट ऑफ कर्नाटका है तो आईजीएसटी, अगर विद इन कर्नाटका है तो सीआरएस लगा के टैक्स इनवॉइस जनरेट कर सकता है। उसे हर पोर्ट ऑफ क्लियरेंस में रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है, और प्लस जो भी वो इंपोर्ट ऑफ गुड्स में क्रेडिट पे कर रहा है, क्योंकि वो इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है, तो वो एज पर सेक्शन 16 ऑफ द आईजीएसटी एक्ट इन ऑल टुगेदर रीडिंग विद सेक्शन 16 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट वो क्रेडिट क्लेम कर सकता है। Now we'll proceed to our second judgment, which was by Gujarat High Court in case of Deen Dayal Port Trust. I will tell you what are the brief facts about the High Court judgment. Now, petitioner था, उन्होंने XT3 रिटर्न फाइल किया लास्ट क्वार्टर का अप्रैल से जून 17। अप्रैल से जून 17 का फाइल किया। फाइल करने के बाद उन्हें लगा कि कुछ इनवॉइसेस रह गए हैं जिनके जो उन्होंने ST3 में क्रेडिट क्लेम नहीं किए हैं, तो उन्होंने 17 सितंबर 2017 को अपना रिटर्न रिवाइज किया ST3 रिटर्न, और जो रिमेनिंग इनवॉइसेस थे वो क्लेम करके अपना रिटर्न फाइल कर दिया। रिवाइज रिटर्न फाइल करने के बाद एसएससी रियलाइज्ड दैट देयर वर सम मोर इनवॉइसेस दैट वर अनअकाउंटेड इन ST3, और उनका फिगर आउट होता है करीब 99,46,810 की ऐसी और इनवॉइसेस थी जिनके रेस्पेक्ट में उन्होंने एसएससी ने क्रेडिट क्लेम नहीं किया था अपने रिवाइज ST3 रिटर्न फाइल करते टाइम में। अब एसएससी अपने फेवर में ही बात करेगा ऑब्वियसली, तो उन्होंने ट्रांसफर फाइल करते वक्त जो उनका ST3 रिटर्न रिवाइज रिटर्न था उसी क्रेडिट प्लस जो 99 लाख की रह गई थी, वो दोनों को कंबाइन करके उन्होंने ट्रांसफर फाइल कर दिया। अब रेवेन्यू अथॉरिटी के ये दिमाग, जब रेवेन्यू अथॉरिटी के पास जब ये गया डिसीजन, जो ये सारा कुछ मैटर हुआ था, तो ऑब्वियसली उन्होंने कहा कि दे आर नॉट लायबल टू claim the credit amounting to 99,46,810। तो उन्होंने रिट फाइल किया एसएससी ने गुजरात हाई कोर्ट। गुजरात हाई कोर्ट ने एसएससी के फेवर में डिसीजन दिया। उन्होंने कहा कि क्योंकि रूल 7B जो था सर्विस टैक्स रूल्स 1994 का, उसमें ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि जो एसएससी है वो मैनी टाइम्स रिविजन नहीं कर सकता अपने रिटर्न का, तो उस वजह से एसएससी फॉल्ट में नहीं रहेगा। क्यों? इसमें प्रोविजन में कोई रूल 7B जो प्रोविजन है उसमें कहीं भी नहीं लिख रखा कि एसएससी मल्टीपल टाइम्स रिवाइज नहीं कर सकता, क्योंकि एसएस पोर्टल है जो कि अपना www.aces.gov.in जहाँ पे ST3 रिटर्न फाइल होते हैं, वो मल्टीपल टाइम्स अलाउ नहीं करता, तो क्योंकि कॉन्ट्ररी है प्रोविजंस पे, तो इस वजह से एसएससी इस केस में हैम्पर नहीं करेगा। तो उन्होंने फेवरेबल डिसीजन दिया एसएससी को, और उन्हें बोला कि आप मैनुअली इसको एडमिट कीजिए, और जो भी बची हुई क्रेडिट है वो एसएससी को अलाउ होनी चाहिए। ठीक है, ये तो फेवरेबल रहा, और मैं डिस्कस करना चाहूंगी कि ऐसे मल्टीपल केसेस है दैट वर बीइंग गिवन इन फेवर ऑफ एसएससी। फॉर एग्जांपल, एक रिसेंटली ऑर्डर इश्यू हुआ था, ऑर्डर नंबर 1/2020 डेटेड 31/3/2020।
डेटेड 7 फरवरी 2020। उस केस में अगर कोई भी जीएसटी काउंसिल ने रिकमेंड किया है एसएससी को कि वो फाइल कर सकता है मैनुअली ट्रांस वन, या फिर जो लास्ट डेट थी जो कि थी 27/12/2017, उस डेट तक उसने कोशिश की और उसके पास डिजिटल एविडेंस है कि मैंने कोशिश की थी लेकिन टेक्निकल ग्लिच के कारण मैं फाइल नहीं कर पाया, तो उस केस में एसएससी जो है वो ट्रांस मैनुअली फाइल कर सकता है 31 मार्च 2020 को। इस केस में तो इस ऑर्डर में सिर्फ दो ही एसएससी कवर होते हैं, आइदर that are recommended by GST Council. Secondly, those who tried to file their GSTR Tran 1 on 27/12, but due to certain technical glitches, they were unable to file their Tran 1. Now, जो अदर एसएससीज है, जैसे कि जिन्होंने कोशिश ही नहीं की फाइल करने की, या फिर जिन्होंने गलत फाइल कर दिया किसी रीजन की वजह से, उसमें एरर रह गई, या फिर वो अब एरर रह गई तो वो रिवाइज करने की फैसिलिटी नहीं दे रहा है, तो उस वजह से भी एसएससी हैम्पर हो रहा है। या फिर उन्होंने अटेम्प्ट किया लेकिन उनके पास कोई एविडेंस नहीं है, स्क्रीनशॉट नहीं है कि उन्होंने अटेम्प्ट किया था ट्रान 1 फाइल करते वक्त, लेकिन कोई टेक्निकल ग्लिच के कारण वो फाइल नहीं कर पाए, तो इन सब एसएससीज पे ऑर्डर एप्लीकेबल नहीं होता, तो उनके पास क्या सोल्यूशन है? तो ऑब्वियसली दे हैव प्रोसीडेड टू फाइल रिट पिटीशन इन हाई कोर्ट्स, और डिफरेंट हाई कोर्ट्स ने, जैसे पंजाब और मद्रास हाई कोर्ट ने अलाउ किया था। उन्होंने कहा कि ये एसएससी का लेजिस्लेटिव राइट है टू क्लेम द आईटीसी, और एक सर्टन ये जो डेट प्रेस्क्राइब की थी 27 दिसंबर 2020 सिर्फ एक प्रोसीजरल चीज है, इसके बेसिस पे आप एसएससी का राइट डिनाई नहीं कर सकते, एसएससी का वेस्टेड राइट है। आई वुड लाइक टू कोट सम डिसीजंस जो फेवर में दिए गए थे। एक केस था ब्लूबर्ड प्योर प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, उसमें कहा गया कि क्योंकि उन्हें रेक्टिफिकेशन के लिए अलाउ कर दिया ट्रान 1 मैनुअली दिल्ली हाई कोर्ट ने। सेकेंडली जकाब मेटिन प्राइवेट लिमिटेड, जिसमें गुजरात हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया कि उन्हें फैसिलिटी दी जाए, ओपन किया जाए ऑनलाइन, और वो ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं आफ्टर द डेट हैज गॉन, लास्ट डेट हैज ऑलरेडी गॉन। फिर भार्गव मोडियास का एक डिसीजन आया था, एडफर्ड टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड का डिसीजन आया था। इन सब केसेस में मैक्सिमम वी हैव सीन दैट ट्रान 1 के केसेस में मैक्सिमम जो भी केसेस फाइल हुए हैं वो एसएससी के फेवर में ही डिसीजन हुए हैं। तो एक राजस्थान हाई कोर्ट इज अ बिट एडमेंट अबाउट दिस, वो अभी तक उन्होंने जो मैक्सिमम केसेस दिए वो एसएससी के फेवर में नहीं दिए हैं। तो अगर आपकी जेन्युइन मिस्टेक है और आप इस ऑर्डर में जो कि ऑर्डर में प्रेस्क्राइब्ड एसएससीज है उसमें फॉल नहीं हो रहा है, तो जो ओनली सोल्यूशन लेफ्ट विथ यू इज टू फाइल अ रिट पिटीशन विद हाई कोर्ट। Now, third advanced ruling I will be discussing about the latest advisory private limited which was given by AAR Rajasthan. I will give you a brief. इस केस में क्या होता है कि एप्लीकेंट दो अग्रीमेंट्स उसने फाइल कर रखे हैं, एक मेंटेनेंस सर्विस जो कि वो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन को प्रोवाइड करता है, और सेकेंडली वाटर सप्लाई की सर्विसेज जो कि उस रेजिडेंट वेलफेयर सोसाइटी में रहते हैं उनके कस्टमर्स को। इसमें जो कि सेकंड कॉन्ट्रैक्ट है जो वाटर चार्जेस के लिए जो वो चार्जेस कलेक्ट करता है एसएससी, वो करता है पर स्क्वायर फीट के हिसाब से। ठीक है, अब एसएससी ने इस केस में पूछा है कि वेदर जो कि वाटर चार्जेस सप्लाई वो कलेक्ट कर रहा है उसके लिए उन्हें जीएसटी पेमेंट करना है या नहीं करना है। इस केस में मैं पहले हुआ क्या था। जैसे कि जो एसएससी है उसने दो कॉन्ट्रैक्ट किए, एक रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के साथ और दूसरा कॉन्ट्रैक्ट किया वहीं के जो सोसाइटी में मेंबर्स रह रहे हैं उनके साथ में। फर्स्ट था मेंटेनेंस सर्विसेज प्रोवाइड करने का आरडब्ल्यूए का, सेकंड था वहीं के जो कस्टमर्स है वहां को वाटर सप्लाई प्रोवाइड करने का। अब इस केस में जो एसएससी है, जो एप्लीकेंट है, उनका मानना था कि क्योंकि मेंटेनेंस सर्विसेज पे वो ऑलरेडी जीएसटी लगा के पेमेंट कर रहे थे, तो जो सेकंड कॉन्ट्रैक्ट है क्योंकि वो वाटर सप्लाई है तो क्या उसमें उन्हें
पेमेंट करना चाहिए या जीएसटी का नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने जो एंट्री नंबर 99 ऑफ नोटिफिकेशन नंबर 2/2017 उसमें लिख रखा है कि वाटर अदर देन एडिटेड मिनरल प्योरिफाइड डिस्टिल्ड मेडिसिनल आयोनिक बैटरी डीमिनरलाइज्ड एंड वाटर सोल्ड इन सील कंटेनर, ये एग्जाम कहा जाएगा। तो क्योंकि ये सप्लाई कर रहे हैं वाटर की, तो ऑब्वियसली उन्होंने इस नोटिफिकेशन का सहारा लिया कि मैं इस नोटिफिकेशन में फॉल होता हूँ, कॉन्ट्रैक्ट 2 जो कि मेरा वाटर सप्लाई का, उस पर जीएसटी एग्जम्पशन मिलना चाहिए। और मोर ओवर उन्होंने ये भी बोला है कि जो एक नोटिफिकेशन था आरडब्ल्यूए का, आप जानते हैं कि 7500 से बिलो अगर आरडब्ल्यूए को कोई भी सर्विसेज रीइंबर्समेंट करता है तो इस केस में वो एग्जम्पशन मिलता है। 17 का एंट्री नंबर 77 हेडिंग 9995 उसके अंदर लिख रखा है कि कोई भी सर्विसेज अगर आरडब्ल्यूए प्रोवाइड कर रहा है अपने कस्टमर्स को 7500 से बिलो है तो इस केस में जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। अब डाउट अराइजेस कि इस केस में तो एप्लीकेंट आरडब्ल्यूए नहीं है, तो किस हिसाब से रूलिंग दी गई? इसमें ट्रिकी रूलिंग दी गई है। इसमें जो डबल एआर ने बोला कि एक तो 2 कॉन्ट्रैक्ट करने की जरूरत ही नहीं थी, मेंटेनेंस सर्विसेज वाटर सप्लाई एक तरह से एक ही जने को दिए जा रहे हैं, ताकि इस क्योंकि या तो ऐसा हो कि उनका 20 लाख से क्रॉस ना करे, तो इस वजह से उन्होंने ना जो एडवांस रूलिंग थी, एडवांस रूलिंग अथॉरिटी, उन्होंने ये सस्पिशन उनके दिमाग में आया, सस्पिशन हैज बीन क्रिएटेड इन देयर माइंड्स दैट 2 कॉन्ट्रैक्ट में बाइफिकेशन का लॉजिक क्या था। एक तरह से क्या होता है कि मैंने रेजिडेंट वेलफेयर को दिया, जो मेंटेनेंस सर्विसेज में तभी तो दूंगी अगर मैं वाटर सप्लाई की या फिर किसी भी तरह की कोई सर्विसेज दे रही हूँ। इसमें 2 कॉन्ट्रैक्ट में इसीलिए किया ताकि जो सामने वाली पार्टी जो कि आरडब्ल्यू उनकी 20 लाख से लिमिट एक्सीड ना हो। तो इस केस में उन्होंने बोला कि ये जो दोनों कॉन्ट्रैक्ट है, मेंटेनेंस सर्विस का कॉन्ट्रैक्ट जो है दूसरा वाटर सप्लाई का, दे आर इंटरलिंक्ड और उनको एक कॉन्ट्रैक्ट मान के उन पे जीएसटी लगना होगा। जो एप्लीकेंट ने सहारा लिया था वो लिया था 12/2017 का, जिस केस में कि अगर रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन कोई भी तरह का एक्सपेंस रिम्बर्स कर रही है फ्रॉम इट्स मेंबर्स, एक्सपेंस रिम्बर्स करने का मतलब है कि कोई भी अमाउंट ले रही है दैट इज एक्सीडिंग टू अगर 7500, तो उस केस में जीएसटी लगेगा एट द रेट ऑफ 18%। अगर 7500 से बिलो है तो वो जीएसटी एग्जम्प्ट है। तो इसी का उन्होंने सहारा लिया कि 2 कॉन्ट्रैक्ट में उन्होंने बाइफरकेट कर दिया ताकि रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन का 7500 से बिलो हो जाए, उन्हें रजिस्ट्रेशन लेना ना पड़े, और साइमल्टेनियसली जो लेटेस्ट एडवाइजरी जो कि एप्लीकेंट है वो बच जाए जीएसटी पेमेंट करने से सेकंड कॉन्ट्रैक्ट में। तो इन अवर ओपिनियन उन्होंने बहुत ही ट्रिकी प्लस बहुत ही लॉजिकल उन्होंने रूलिंग दी है, दो इट इज नॉट इन द फेवर ऑफ एसएससी, लेकिन एक तरह से जो टैक्स रिविजन करना चाह रहे थे लेटेस्ट एडवाइस, आई विल नॉट बी पॉइंटिंग अबाउट अ पर्टिकुलर एप्लीकेंट, लेकिन एक तरह से टैक्स रिविजन मेजर था। तो इस केस में उन्होंने एडवांस रूलिंग ने समझदारी से ये रूलिंग दी ताकि गवर्नमेंट को प्रॉपर टैक्स मिल सके। आई होप कि जो मैंने एडवांस रूलिंग और जो हाईकोर्ट डिसीजंस आपके सामने समझाए हैं वो आपको अच्छे से समझ आए होंगे। इन केस आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप लास्ट में हमसे क्वेरी या कोई भी क्वेश्चन आंसर है, आप जो भी क्वेश्चन है आप हमसे पूछ सकते हैं क्वेश्चन आंसर इंटरेक्टिव सेशन में। अब आई विल बी Mrs. Akansha, she will be explaining you about the next 3 advanced ruling and the High Court judgments, और फिर हमारा question and answer होगा। Now I will be handing over to Akansha for further taking of webinar. Thank you. Now I will give you a brief introduction of our next presenter. This webinar will be continued by my another colleague, CA Akansha Achalia. She has an in-depth knowledge of GST. Presently, she is involved in conducting internal and statutory audit under GST.
She is also engaged in handling advisory, legal, and litigation matters along with day-to-day compliance work in GST. She is actively engaged in deliberations with respect to various practical issues and challenges faced by taxpayer in GST. We also have 10 minutes for answering any queries of our attendees. If you have any queries, you can post it in question and answer section appearing on your screen. I would like to give my regards once again to CA Pradeep Jain sir. So let us continue the webinar, and now I hand over the session to CA Akansha Bohra Anchalia. गुड इवनिंग एवरीवन। होप आप सब घर पे है और सेफ है। और मैं ये प्रे करूंगी कि जो भी टफ टाइम्स है अपन बहुत ही जल्दी ओवरकम कर लेंगे। इस वेबिनार को आगे बढ़ाते हुए जो अपना टॉपिक है सिग्निफिकेंट रूलिंग्स एंड हाई कोर्ट जजमेंट्स को मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। इस वेबिनार में मैं 3 केसेस को डिस्कस करूंगी। फर्स्ट है जो मोस्ट कॉम्प्लेक्स रूलिंग गिवन बाय द स्टेट ऑफ राजस्थान क्राफ्ट क्ले इंडिया प्राइवेट लिमिटेड इस इश्यू पे कि डायरेक्टर रेम्यूनरेशन पे जीएसटी लगेगा या नहीं, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है। और जो सेकंड है वो है जो रीसेंट हाई कोर्ट डिसीजन गिवन इन द केस ऑफ ईवे बिल रिगार्डिंग अंडर वैल्यूएशन ऑफ गुड्स। जो थर्ड टॉपिक है वो है एक लैंडमार्क जजमेंट गिवन बाय द गुजरात हाई कोर्ट इस कंप्यूटेशन पे कि दो टैक्स एंसिलरी सर्विसेज है जो प्रोवाइड होती है जहाँ पे प्रिंसिपल सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी है। सो सबसे पहले अपन ये डिस्कस करेंगे क्राफ्ट क्ले इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। इसमें सबसे पहले जो ब्रीफ फैक्ट्स है केस के ये इसको मैं आपको बताती हूँ। क्राफ्ट क्ले इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जो है वो बोन चाइना क्रॉकरी का मैन्युफैक्चरर है। इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में 6 डायरेक्टर्स हैं। जो डायरेक्टर्स है वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स को हेड कर रहे हैं, जैसे कि रॉ मटेरियल को प्रोक्योर करना, प्रोडक्शन, क्वालिटी चेक्स, डिस्पैच ऑफ गुड्स, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग जैसे जैसे और कोई डिपार्टमेंट्स। फर्दर जो एम्प्लॉयज है वो जो डायरेक्टर्स है वो जो दूसरे एम्प्लॉयज है उन्हीं की तरह ट्रीट किए जाते हैं। उनको जो सैलरी मिलती है वो उनका जो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट है उसी बेसिस पे मिलती है जो कि कंपनी की पॉलिसी है। जो क्वेश्चन इसमें इस एआर में एप्लीकेंट ने रखा है वो ये था कि जो वेदर जीएसटी इज पेएबल अंडर रिवर्स चार्ज mechanism paid on salaries to directors which is being paid as per the employment contract। अब अपन चलते हैं एप्लीकेंट कंटेंशन पे। बट बिफोर मैं एप्लीकेंट कंटेंशन आपको बताऊं, मैं ये जरूर बताना चाहूंगी जो सर्विस टैक्स रिजीम में सेम सिचुएशन थी, पहले उसको अपन जान लेते हैं। इसमें एक बताना चाहूंगी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो कि ब्रांच है एक मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की, उसमें ये बोला गया है कि जो अमाउंट अपन डायरेक्टर्स को दिया जाता है वो सैलरी ट्रीट की जाएगी। एक ब्रांच के डिसीजन को जो जीएसटी डिपार्टमेंट है उसको वो कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर सकता है। ये दिया गया है रेंट वर्क्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के केस में। अब चलते अपन सर्विस टैक्स रिजिम में। सर्विस टैक्स रिजिम में भी यही बोला गया है कि रेम्यूनरेशन पेड टू डायरेक्टर्स इज एक्चुअली सैलरी, जो कि फॉर्म 16 में टीडीएस डिडक्शन में सैलरी हेड ऑफ इनकम टैक्स में दिखाया जाता है। और जो अदर कंप्लायंसेस है जैसे कि डिडक्शन ऑफ प्रोफेशनल टैक्स, ईपीएफ एंड सो ऑन, ये सारी चीजें भी इंडिकेट करती है कि डायरेक्टर्स आर एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी एंड सो सर्विस टैक्स इज नॉट पेएबल बाय द कंपनी अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। इस केस में अपन रेफरेंस देते हैं डिसीजन ऑफ मेजर्स अलाइड ब्लेंडर्स एंड डिस्टिलर्स प्राइवेट लिमिटेड। अब अपन आगे बढ़ते हैं एप्लीकेंट्स कंटेंशन जो कि क्ले क्राफ्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के केस में। एप्लीकेंट ने ये कंटेंट किया, स्पेसिफिकली हाईलाइट किया कि जो अमाउंट डायरेक्टर्स को दी जा रही है वो सैलरी हेड में बुक की जा रही है, और जो डायरेक्टर है वो उसे इनकम टैक्स पे कर रहा है शोइंग एज इनकम फ्रॉम सैलरी। और जो एप्लीकेंट है उसने ये भी कहा है अदर फिजिकल लॉस को रेफर करते हुए, जैसे कि कंपनीज एक्ट है, प्रोविडेंट फंड लॉ है, ये बताते हुए एआर को जो रिलेशनशिप है कंपनी और डायरेक्टर का, स्पेशली इन द केस ऑफ एग्जीक्यूटिव रोल,
वो एक एम्प्लॉयमेंट एंड देयरफॉर इट इज नॉट लायबल टू जीएसटी। फर्दर अपन मूव करते हैं आगे, जिसमें क्लॉज 1 टू शेड्यूल 3 का रेफरेंस दिया गया है। क्लॉज 1 शेड्यूल 3 ऑफ सीजीएसटी एक्ट जो है वो डील करता है, वो ये बोलता है कि जो सप्लाई ऑफ मतलब जो सप्लाई ऑफ गुड्स है और जो सप्लाई ऑफ सर्विसेज इन 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 लिस्ट को अपन सप्लाई ट्रीट नहीं करेंगे। तो क्लॉज 1 ऑफ शेड्यूल 3 ये बोलता है कि सप्लाई सर्विसेज बाय एन एम्प्लॉई टू द एम्प्लॉयर इन द कोर्स ऑफ और इन रिलेशन टू हिज एम्प्लॉयमेंट। अब चलते हैं अपन जो रूलिंग ने डिसीजन दिया है। Ruling has pronounced that consideration paid to the directors against the supply of services provided to the applicant company are not covered under Clause 1 of the CGST Act, as the directors are not employee of the company and the company is liable to pay GST under reverse charge mechanism. अब इस केस में AR ने एक कर्नाटका AR की रूलिंग को रेफर किया है, जो कि अल्कॉन कंसल्टिंग इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड है, जिसमें सिमिलर डिसीजन पास किया गया था कि जो रेम्यूनरेशन पे की गई है डायरेक्टर्स को, उस पे रिवर्स चार्ज में आपको टैक्स पे करना है। जो अल्कॉन कंसल्टिंग इंजीनियरिंग लिमिटेड इंडिया लिमिटेड का जो केस था, उसमें ये क्लॉज 1 टू शेड्यूल 3 ऑफ सीजीएसटी एक्ट को कंसिडर नहीं किया गया। बट ट्राफ्ट क्ले इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में इसको कंसिडर किया है, बट इस पे ये दिया गया है कि जो कंसिडरेशन डायरेक्टर्स को पे की गई है वो एज एन एम्प्लॉय नहीं है, सो इस पे आरसीएम लगेगा और उसको अपन सैलरी ट्रीट नहीं कर सकते। मेरे ओपिनियन में मैं ये कह सकती हूँ कि जो एआर ने डिसीजन दिया है बहुत ही नैरो व्यू है। जो मतलब जीएसटी एआर को सिर्फ जीएसटी स्टैंड पॉइंट से नहीं, बट दूसरे फिस्कल लॉस को भी कंसिडर करना चाहिए था। बट फिर भी मैं ये कहना चाहूंगी कि जो एआर के डिसीजंस है वो सिर्फ और सिर्फ उस एप्लीकेंट पे एप्लीकेबल होंगे, ना कि सभी पे। होप आप इस पॉइंट पे क्लैरिफाई हो चुके हैं। अब अपन आगे बढ़ते हैं अपनी दूसरे पॉइंट पर। This conference will now be recorded. अब अपन आगे चलते हैं एक छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के जजमेंट पे, जो कि ई वे बिल के केस में इश्यू हुआ है। इस केस में जो गाड़ी और गुड्स थे दोनों को डिटेन कर लिया गया, सीज कर लिया गया, ये बोलते हुए कि ये जो गुड्स है ये अंडर वैल्यूड है। ये इश्यू हुआ है केपी सुगंध लिमिटेड के केस में। सबसे पहले अपन चलते हैं ब्रीफ फैक्ट्स को लेकर। जो पेटिशनर है वो मैन्युफैक्चरर है पान मसाला और टोबैको प्रोडक्ट्स का। इसमें अब इस गुड्स ये जनरली अब डिस्पैच करता है बाय वे ऑफ ट्रक बिलोंगिंग टू दैट ऑफ ट्रांसपोर्टर। तो जब गुड्स डिस्पैच किए थे तब उसने अपने ओरिजिनल टैक्स इनवॉइस और ई वे बिल साथ में ड्राइवर को हैंड ओवर कर दिए। और जब रास्ते में गाड़ी रोकी गई तब ड्राइवर ने ओरिजिनल टैक्स इनवॉइस प्लस ई वे बिल दोनों ऑथराइज पर्सन को दिखा दिया। अब इस केस में ये इश्यू अराइज हो रहा है कि क्या कैन द डिपार्टमेंट डिटेन एंड सीज द व्हीकल एंड गुड्स अंडर सेक्शन 129 on ground of discrepancies on the basis of undervaluation of the goods. इस केस में जो एप्लीकेंट का कंटेंशन था वो ये था कि ड्राइवर सारे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स कैरी कर रहा था, जैसे कि प्रॉपर ई वे बिल और टैक्स इनवॉइस। Moreover, there was no discrepancy in the quantity and other details mentioned in the invoice and the e-way bill. छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि invoice cannot be a ground for detention of goods and vehicles for a proceeding to be drawn under section 129 of the Central Goods and Service Tax Act 2017, read with Rule 138 of the CGST Rules 2017. Merely because the manufacturer sells his products to its customers or dealer at a price lower than the MRP, as such cannot be a ground on which the product or the vehicle could be seized or detained. Therefore, the order passed under section 129 and the order of demand of tax and penalty, both being unsustainable, deserve to be set aside. Authorities were forthwith decided to release the goods
belonging to associate based on the invoice as well as e-way bill. Quashment of the impugned order by itself would not preclude the state authorities from initiating appropriate proceedings against assessee for the alleged act of undervaluation of the goods as compared to the MRP on the product in accordance with law. Further, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने 2 अदर जजमेंट्स पे रिलायंस किया था जो कि ऑलरेडी इसी सिमिलर लाइंस में दिए गए थे। एक केस था सकुल नाजा मोहम्मद जो कि गुजरात हाई कोर्ट ने दिया था और जो दूसरा केस था वो है अल्फा ग्रुप का जो कि केरला हाई कोर्ट ने दिया था। तो इस केस से अपन ये बहुत ही एक लैंडमार्क जजमेंट है कि जो अंडरवैल्यूएशन ऑफ गुड्स है तो उस केस में जो डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स है उस गुड्स को और गाड़ी को सीज नहीं कर सकते। अब अपन बढ़ते हैं अपनी आगे की नेक्स्ट एट द एंड नेक्स्ट सेशन पे। This conference will now be recorded. टोरेंट पावर लिमिटेड जो कि एंसिलरी सप्लाईज इन रिलेशन टू सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक गुजरात हाई कोर्ट का जजमेंट है। इसमें जो टोरेंट प्राइवेट लिमिटेड है इसके ब्रीफ फैक्ट्स मैं आपको बता देती हूँ। ये जो कंपनी है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर जो कि इसकी प्रिंसिपल सप्लाई है और जैसे बहुत रिलेटेड सप्लाईज भी देती है जैसे कि रिलीज ऑफ कनेक्शन है, मीटर टेस्टिंग फीस, रेंटल चार्जेस अगेंस्ट मीटर इक्विपमेंट, ट्रांसफार्मर्स, कैपेसिटर्स, डुप्लीकेट बिल के चार्जेस एंड सो ऑन। एक सर्कुलर इशू किया था गवर्नमेंट ने, सर्कुलर नंबर 34 डेटेड 1 मार्च 2018, जिसमें ये क्लैरिफाई किया था कि जो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है बाय वे ऑफ एन इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी is only exempt from GST under notification number 12/2017 serial number 25। और जो बाकी की सर्विस है जैसे कि एप्लीकेशन फी फॉर रिलीजिंग कनेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, रेंटल चार्जेस, टेस्टिंग फी फॉर मीटर्स, लेबर चार्जेस फॉर कस्टमर्स, चार्जेस फॉर डुप्लीकेट बिल, ये सारी चीजें टैक्सेबल होगी जो कि डिस्कॉम कंपनीज अपने कस्टमर को देती है। इस केस में जो क्वेश्चन राइज हुआ था ये था कि जो एंसिलरी सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है जो कि एंसिलरी सर्विसेज सप्लाईज प्रोवाइड की जा रही है वो सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मान के उस पर जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा। अब हम लोग एक रेफरेंस लेते हैं राजस्थान एआर का जो कि मेजर्स टीपी अजमेर डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड के केस में। इसमें ये बोला गया था कि जो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है वो सिर्फ और सिर्फ अलोन एग्जेम्प्ट है इन टर्म्स ऑफ नोटिफिकेशन नंबर 12 एंड जो नॉन टैरिफ चार्जेस है जो बाकी के सारे रिलेटेड सर्विसेज है वो कस्टमर से आप टैक्स करोगे जो कि इन लाइन विद द सर्कुलर है। बट जो गुजरात हाई कोर्ट का अब जो डिसीजन अपन डिस्कस कर रहे हैं वो इसके कॉन्ट्ररी है। इसके बाद में जो हाई कोर्ट ऑब्जर्व दैट द प्रायर कमिंग टू द जीएसटी ऑफ द नेगेटिव लिस्ट regime of the service tax law, the central government by virtue of notification number 11/2010 dated 27 Feb 2010 exempted transmission of electricity service from the whole of service tax leviable thereon, and by virtue of notification number 32/2010 dated 22nd June 2010 distribution of electricity came to be exempted from the whole of service tax leviable thereon. Thus, what was exempted from service tax under those provisions was transmission and distribution of electricity. Despite this, the revenue authorities had considered services related to transmission and distribution of electricity as exempt from service tax by virtue of those notifications. In so far as the electricity meters are concerned, White Circular number 131/13 2010 dated 7/12/2010, it was clarified that supply of electricity meters has for hire to consumers being an essential activity having direct and close nexus with transmission and distribution of electricity, the same is covered by the exemption for transmission and distribution of electricity extended under the relevant notification. इसमें ये बोला जा रहा है कि जो सर्विस टैक्स के रिजिम में था
उसमें भी यही सिमिलर था। जो मेन सप्लाई है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वो एग्जाम मानी जाएगी, और जो मिसलेनियस एंड रिलेटेड सर्विसेज है, जैसे कि ट्रांसमिशन हायर, मतलब जो मीटर हायर करना कस्टमर्स को, इन सारों पे आपको टैक्स पे करना है। The meaning of transmission and distribution of electricity does not change either for the negative list or the GST regime. अब अपन आगे बढ़ते हैं जीएसटी में। इसमें ये बोला गया है कि द सप्लाईज आर नेचुरली सप्लाई सो एज टू फॉल विद इन द रियल एम्बिट ऑफ कंपोजिट सप्लाई, जो कि सेक्शन 2 सबसेक्शन 30 में डिस्कस हुआ है जीएसटी एक्ट के। सेक्शन 2 सबसेक्शन 30 जो है द कंपोजिट सप्लाई की डेफिनेशन डिस्कस करता है, जो कि ये है, composite supply means a supply made by taxable person to a recipient consisting of 2 or more taxable supplies of goods or services or both, or any combination thereof, which are naturally bundled and supplied in conjunction with each other in the ordinary course of business, one of which is a principal supply. जो composite supply है, उससे अपन ये infer कर सकते हैं कि combination of 2 or more supplies होनी चाहिए, and the combination should not include exempt supplies. बट इस केस में अब हम लोग ये बताना चाहेंगे कि एक सर्कुलर इशू हुआ था 32/06/2018 12 to 2018 को इशू हुआ था, जिसमें ये था कि जो इन पेशेंट्स है, उस केस में जैसे कि अगर मैं किसी पेशेंट, कोई हॉस्पिटल है, अपने पेशेंट जो इन पेशेंट्स है उनको बिलिंग करती है मेडिकल सर्विसेज के लिए है, और मिसलेनियस जैसे डॉक्टर के चार्जेस है, न्यूट्रिशनिस्ट है, उन सब की फीस भी उसमें इंक्लूड किया जाता है। तो उस केस में भी ये माना जाएगा कि जो एक कॉम्पोजिट सप्लाई है इज नॉट लायबल टू जीएसटी। Moreover, it has been consistently being held by various advanced ruling authorities that healthcare services provided in package, including stay facilities, medical, surgical implants, food, etc., is composite supply, wherein the principal supply is that of healthcare services, which is exempt from GST. इस केस में एक CMC वेलोर एसोसिएशन GST को रेफर किया गया है। फर्दर एक और केस है बेबी मेमोरियल हॉस्पिटल लिमिटेड का, जो कि केरला AR ने इशू किया था। Therefore, the decision pronounced by the Honorable High Court Gujarat in the case of Torrent Power Limited is a remarkable judgment, thereby relieving many taxpayers, especially DISCOM companies and customers, from payment of GST on ancillary services availed in connection with supply of electricity. This conference will now be recorded. Now moving on to the challenges being faced by the advanced ruling. Here I'll be telling you 4 challenges. The first one being pro-revenue rulings, next is contradictory rulings, and next is the lack of appeal mechanism, and further the last one is the limited scope. सबसे पहले डिस्कस करते हैं अपन प्रो रेवेन्यू रूलिंग्स में। प्रो रेवेन्यू रूलिंग्स इसलिए है क्योंकि जो AAR और AAAR के जो मेंबर्स है वो सारे डिपार्टमेंटल ऑफिशियल्स है, इसमें कोई भी जुडिशियल ऑफिसर नहीं है। तो ये अपन इसमें ये माना जाएगा कि जो AR की रूलिंग्स है वो ऑलमोस्ट डिपार्टमेंट के फेवर में होगी, जो कि एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है। जो नेक्स्ट पॉइंट है कॉन्ट्राडिक्टरी रूलिंग्स। कॉन्ट्राडिक्टरी रूलिंग्स जैसे कि मैं एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करती हूँ आपको। IAM के केस में एक ही IAM है, बट उसकी अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग रूलिंग्स दी गई थी। जैसे कि जो AR बैंगलोर है और मध्य प्रदेश है, उसमें ये कंक्लूड किया था कि एक स्पेसिफिक एग्जेम्पशन है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को, तो उस केस में IAM को नहीं मिलेगा। बट IAM कोलकाता के केस में ये प्रोनाउंस हुआ था कि उनको जनरल एग्जेम्पशन मिल जाएगा, जो कि दोनों ही कॉन्ट्राडिक्टरी रूलिंग्स पास किए गए थे। नेक्स्ट अपन चलते हैं नेक्स्ट चैलेंज की ओर, जो कि लैक ऑफ अपील मैकेनिज्म। जैसे कोई एप्लीकेंट अप्लाई करता है AR को, उसके बाद में अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है तो वो नेक्स्ट स्टेप में जाएगा, दैट इज एप्लीकेशन टू AAAR। बट अगर वो फिर भी सेटिस्फाइड नहीं है तो वो फाइनल डिसीजन होगा, वो आगे नहीं जा सकता। गवर्नमेंट ने ये बोला था कि नेशनल एपेलेट फॉर अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग क्रिएट की जाएगी, कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी,
पर अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। नेक्स्ट जो चैलेंज है वो है लिमिटेड स्कोप। लिमिटेड स्कोप मतलब जो एडवांस अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग है उसका स्कोप लिमिटेड है। जैसे कि काफी सारे केसेस ऐसे हैं जहाँ पे एप्लीकेंट्स गए थे यही पूछते हुए कि हमारी प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी, बट एआर्स ने इन एप्लीकेशंस को रिजेक्ट कर दिया ये कहते हुए कि जो उनका स्कोप है वो लिमिटेड है और वो इन डिसीजंस पे वो बता नहीं सकते। सो इस स्कोप को बढ़ाना चाहिए गवर्नमेंट को, नहीं तो फिर वो असेसीज के हेल्प नहीं रहेगा आईएआर किसी का भी। Now I conclude my session and we shall move on to the question and answer session which will be handled by CA Pradeep Ji Jain. Thank you. Thank you, Kansha. Karthik? Yes, sir. Now we can take the queries. Yeah. You can send me the queries on on your chat box is there. You can send your queries on chat box also. You can send us on WhatsApp also. Very well deliberation by Kansha and Preksha. Very well done. कोई भी इन रूलिंग से रिलेटेड आपकी क्वेरीज हो तो आप मेरे को भेज सकते हैं, तो मैं उनका रिप्लाई करूंगा। अभी मैं टेकअप करता हूं जो क्वेरीज मेरे पास ऑलरेडी आई हैं। ज्यादातर क्वेरीज जो आई हैं वो बेसिकली उसी पे आई है जो एडवांस रूलिंग आई है उसके लिए, क्या इसके लिए जो डायरेक्टर रेम्यूनरेशन पे सबसे ज्यादा क्वेरीज उसी पे है। लोगों का इंटरेक्शन भी उसी से है, ज्यादातर लोग इसी के बारे में जाते हैं। उसमें जो फर्स्ट क्वेरी मेरे पास आई है उसमें ये है कि एज द एआर डिस्कस अबाउट द पेमेंट ऑफ टैक्स ऑन आरसीएम बेसिस ऑन सैलरी, whether RCM is applicable on sitting fees paid to the directors also. ये क्वेरी हमसे बार बार पूछी गई every now and then. Even Mr. Mahendra Jain from ISKCON Surgical asked the same query from me, and he said कि only for this purpose AR has come. हालांकि AR में जो रूलिंग आई है वो उस पे सिटिंग फीस पे तो लगेगा ही, उसमें कोई डाउट नहीं है, दूसरे पे नहीं लगेगा। सिटिंग फीस तो सैलरी का पार्ट नहीं होती तो उस पे तो लगेगा ही। परंतु जो ये कहना कि एआर की रूलिंग सिर्फ इसी के लिए, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के लिए, ये गलत है, क्योंकि वो सभी डायरेक्टर्स, उन्होंने बताया था इवन एडवांस रूलिंग में 6 तरह के डायरेक्टर है और वो डिफरेंट डिफरेंट काम कर रहे हैं, तो ये जो है वो सभी पे एप्लीकेबल है। और इस पे भी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स पे भी, सिर्फ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स पे नहीं, सभी डायरेक्टर्स पे एप्लीकेबल है और उनको इस रूलिंग के हिसाब से पे करना पड़ेगा। और is salary paid to executive director only be paid under tax under RCM? नहीं, सिर्फ यही नहीं है। मैंने वापस वही कह रहा हूँ कि सिर्फ इसके लिए नहीं है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की सैलरी के लिए, ये सबके लिए एप्लीकेबल है, क्योंकि उसमें एआर ने कहा है कि सभी डायरेक्टर्स डिफरेंट डिफरेंट काम कर रहे थे। 6 डायरेक्टर्स थे, वो सिर्फ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नहीं थे, वो मैनेजमेंट का रूल भी प्ले कर रहे थे, तो उनकी जो सैलरी पे की है उन्होंने क्लियर कट ये कह दिया कि सैलरी जो डायरेक्टर को अपन रेम्यूनरेशन देते हैं वो सैलरी नहीं है, इसलिए इसके ऊपर लगेगा। हालांकि ये पोजीशन गलत है। सर्विस टैक्स के टाइम में भी ये इशू रेज हुआ था, हमने खुद ने अंसारा इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड के केस में ये केस डिफेंड किया है और इसमें हम जीते हैं। और ये क्लियरली है कि सैलरी पेड टू डायरेक्टर इज जो रेम्यूनरेशन पेड टू डायरेक्टर इज सैलरी एंड दैट इज एक्सक्लूडेड बाय द शेड्यूल, एंड दैट्स व्हाई जीएसटी इज नॉट एप्लीकेबल ऑन द सेम। On the same side, do you suggest companies to pay RCM on salary? अब ये बहुत टिपिकल क्वेश्चन है, ये क्या करना चाहिए, या तो पे कर देना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखिए, जिनकी कैश लाइबिलिटी आ रही है, जिनकी कैश लाइबिलिटी आ रही है और वो पे कर रहे हैं हर मंथ में, सपोज आपकी एक यूनिट है जिसमें आपको 1 करोड़ की टोटल आपकी आउटपुट सेल पे लाइबिलिटी है, जीएसटीपी 90 लाख का आपके पास क्रेडिट अवेलेबल है और 10 लाख आपको पे करना है फ्रॉम कैश, और आपके जो डायरेक्टर रेम्यूनरेशन है उस पे आपको 1 लाख रुपए जीएसटी बनता है। तो मेरा सजेशन यही रहेगा, आप 1 लाख रुपए पे कर दीजिए कैश में, उसकी क्रेडिट वापस ले लीजिए और फिर वापस जो है आपके पास 90 लाख की जगह पे 91 लाख क्रेडिट हो जाएगी, तो 9 लाख रुपीस आप वापस
पे कर सकते हैं. So in this way there will not be any revenue implication on you. That's why you can pay earn. Although my observation is only that कि salary remuneration paid to director is salary and tax is not payable to them. And even Income Tax Act we have filed form number 16. That's why it will be treated as salary only and no tax is payable on the same. But to be on safer side, why to invite litigation? If you have a cash liability then pay. But the SSCs who do not have any cash liability और जो इन्वर्टेड ड्यूटी का रिफंड लेते हैं या जो एक्सपोर्टर रिफंड ले रहे हैं ऐसे एसएससी है तो उनको तो इसमें पे नहीं करना चाहिए बिकॉज इट विल बी एडिशनल लायबिलिटी फॉर यू. एक और क्वेश्चन जो है इज टैक्स पेड ऑन अंडर आरसीएम टू अदर पर्क्स पेड टू द डायरेक्टर्स. अगर ये सैलरी के जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसका पार्ट है तो उस पे नहीं लगेगा, अदरवाइज लगेगा. इज टैक्स पेड अंडर आरसीएम इज अवेलेबल एज क्रेडिट? यस, इसको क्रेडिट मिल जाएगी, देयर इज नो डाउट अबाउट इट. एक और क्वेरी जो आई है, इवन इफ टीडीएस इज बीइंग डिडक्टेड ऑन सैलरी देन आल्सो इज द कंपनी लायबल टू पे टैक्स अंडर आरसीएम ऑन सैलरी? अब मैं यही कह रहा हूँ कि जब एक एक्ट उसको सैलरी मान रहा है, टीडीएस डिडक्ट कर रहा है, फॉर्म 16 इशू हो रहा है और हम उसका टीडीएस का डिडक्शन नहीं ले रहे हैं इनकम टैक्स एक्ट में, तो फिर उसको सैलरी ही माना जाएगा और उस पे आरसीएम एप्लीकेबल नहीं होगा. टाइम एंड अगेन दिस हैज बीन डिडक्टेड. इवन कंसारा इंजीनियर प्राइवेट लिमिटेड की केस में भी हमने यही स्टैंड लिया और उसके ऊपर हमने अथॉरिटी ने हमें रिलीफ भी दिया. तो सर्विस टैक्स और जीएसटी लॉ में ज्यादा चेंज नहीं हुआ है और वही एप्लीकेबल है. इवन गुजरात हाईकोर्ट ने भी अभी कहा था एक डिसीजन जो प्रेक्षा डिस्कस कर रही थी, तो इसमें भी यही एप्लीकेबल है कि भाई इस पे टैक्स नहीं लगना चाहिए. कंपनी हैज रजिस्ट्रेशन इन डिफरेंट स्टेट बट सैलरी इज पेड फ्रॉम वन स्टेट, तो क्या होगा? अगर सैलरी आपने डिफरेंट स्टेट में, मतलब आपने सैलरी तो एक हेड ऑफिस में ही दी है परंतु डिफरेंट स्टेट में डायरेक्टर देता है, तो फिर कोलंबिया एशिया एप्लीकेबल होगा एडवांस रूलिंग. उसमें उन्होंने क्लियरली कहा है तो जितनी ये जो है आपने जिस स्टेट में जितने आवर्स डायरेक्टर ने दिए उसके ऊपर आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा. वो डिस्टिंक्ट पर्सन है और उसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबिलिटी होगी, तो आपको कैलकुलेशन करने पड़ेंगे और उसके हिसाब से आपको पे करना पड़ेगा. अगेन ये रेवेन्यू न्यूट्रल एक्सरसाइज है क्योंकि वो जो आप यहाँ पे करोगे उधर वो क्रेडिट मिल जाएगी, तो इसको पेमेंट करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. Sir, can separate proceedings be initiated in case of undervaluation of goods? ये तो कोर्ट ने भी कहा है सर. आप मेरे ख्याल से जो है ये जो क्वेश्चन है वो ईवे बिल से रिलेटेड ही है. ईवे बिल के केस में उन्होंने कहा कि जब ईवे बिल और इनवॉइस आपके पास पूरे दोनों अवेलेबल हैं and you have produced before the authorities also, then the goods cannot be seized on the context of undervaluation of goods. But अंडरवैल्यूएशन के केस में आपको सेपरेट प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट कैन इनिशिएट एंड दे कैन, उनको सीज नहीं करना है गुड्स, उसको जाने देना है, परंतु वो अगर मानते हैं कि ये अंडरवैल्यूएशन है तो दे कैन स्टार्ट सेपरेट प्रोसीडिंग्स अंडर द एक्ट. सर, ड्यूरिंग लॉकडाउन हैज द रिक्वायरमेंट ऑफ जनरेशन ऑफ ईवे बिल आल्सो रिलैक्स्ड? नो, ईवे बिल एप्लीकेबल है. जो गवर्नमेंट ने सेक्शन 168A इंसर्ट किया और उसके ऑर्डिनेंस से निकाला 168A और उसमें उन्होंने नोटिफिकेशन 35/2020 निकाला. उसमें उन्होंने सर्टेन प्रोविजंस को रिलैक्स किया है कि अगर आपका जो पीरियड ऑफ उसमें कोई एक्शन लेना है या कुछ भी करना है वो 20 मार्च से लेके 29 जून तक है तो उसकी ऑटोमेटिकली डेट 30 जून हो जाएगी. परंतु ईवे बिल के प्रोसीजर जो है उसके एक्सेप्शन में है, इसलिए इस पे ये एप्लीकेबल नहीं होगा. तो ईवे बिल जनरेट करके ही आपको मटेरियल निकालना पड़ेगा. हाँ, एक रिलैक्सेशन जरूर दिया है उन्होंने कि 20 मार्च से लेके 29 अप्रैल तक जो मटेरियल गया है उसकी डेट ऑटोमेटिकली एक्सटेंड होके 30 अप्रैल हो जाएगी. आल्दो वो एक्सपायर हो गई है डेज, परंतु फिर भी वो एक्सटेंड हो जाएंगे. परंतु अब हमने इसमें एक रिप्रेजेंटेशन गवर्नमेंट को और भेजा है. सिंस दिस लॉकडाउन हैज बीन एक्सटेंडेड 3rd मई, दैट्स व्हाई ये भी जो है इसका भी एक्सटेंड कर देना चाहिए. Sir, I have prepared a e-way bill on 21st April for invoice and selected the mode of transport by rail. The e-way bill expired on 25th April, but due to lockdown, goods were not sent. What is remedy now?
अगर गुड्स गए ही नहीं है देन देयर इज नो रेमेडी अवेलेबल। अगर ये मतलब गुड्स चले जाते हैं तो उसका ईवी बिल एक्सटेंड हो जाता 30 अप्रैल तक ऑटोमेटिकली, परंतु अगर ये गुड्स गए ही नहीं है और वो फैक्ट्री में ही रह गए हैं तो या जहाँ पे है वो ऑफिस में ही रह गए हैं, तो देन देयर इज नो रेमेडी अवेलेबल। ओनली रेमेडी अवेलेबल इज यू राइट ए लेटर टू द डिपार्टमेंट सेइंग दैट दीज गुड्स वर द इनवॉइस वाज प्रिपेयर्ड, द ईवी बिल वाज प्रिपेयर्ड ऑन 21 अप्रैल इटसेल्फ, बट वो गुड्स मूव नहीं हुए, दैट्स व्हाई वी आर issuing a credit note in this case, and this intimation is given to you. And we have a profound belief that in this situation of COVID-19 or critical situation, the officer will accept this letter and there will be no action against you for this. Sir, does medicines provided to outdoor patient also be treated as composite supply and not taxable? देखिए, कंपोजिट सप्लाई का जब कॉन्सेप्ट आया था इनिशियल स्टेज पे, तब ये हमें था कि कंपोजिट सप्लाई तभी होगी जब दो टैक्सेबल सर्विसेज होंगी, और एग्जम्प्टेड सप्लाई तब होगी जब दो एग्जम्प्टेड और टैक्सेबल दोनों साथ में होंगी। तो एक सप्लाई जो है, जो मेडिसिन पेशेंट को दे रहे हैं, जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं, मेडिसिन और प्लस ऑपरेशन चार्जेस, ऑपरेशन चार्जेस मेडिकल केयर में आएंगे, वो एग्जम्प्टेड है, और जो आउटडोर पेशेंट को अपन ने दिया है, मतलब मेडिसिन दी है, वो टैक्सेबल है। तो एक टैक्सेबल हो गई और एक एग्जम्प्टेड हो गई। तो नॉर्मली जब इनिशियल में हमने सेमिनार्स भी लिए थे तब यही बताया था कि ये मिक्स सप्लाई में आएंगे, क्योंकि मिक्स सप्लाई की डेफिनेशन में लिखा है एक एग्जम्प्टेड हो और एक टैक्सेबल हो, तो वो मिक्स सप्लाई में आएंगे। तो मिक्स सप्लाई में कॉन्सेप्ट क्या होता है, जो हाईएस्ट रेट होती है वो लगती है, परंतु क्योंकि ये अब गवर्नमेंट ने भी क्लैरिफाई कर दिया कि कंपोजिट सप्लाई में आएंगे, तो इसमें जो प्रिंसिपल सप्लाई वो हो जाएगी जो उसको मतलब अगर जो उसको कलर दे रही है, तो कलर कौन सी सप्लाई दे रही है, जो मेडिकल फैसिलिटीज हैं, दैट्स व्हाई इट विल बी एग्जम्प्टेड। तो मेडिसिन और जो है वो कंपोजिट सप्लाई हो जाएगी, ऑपरेशन चार्जेस और वो दोनों मिलके जो है मेडिकल केयर फैसिलिटीज में आ जाएंगी और वो एग्जम्प्टेड रहेगी। कार्तिक, एनी अदर क्वेरी? यस सर, मैंने चैट बॉक्स में आपको सेंड करी है। कैन यू रीड आउट फॉर मी? यस सर। First question is from Mr. Hariharan. He is saying, sir, as per Kerala High Court order in the case of Sutherland Mortgage Service, dated 3rd February, has decided that AAR can decide issues pertaining to place of supply. That is a ambiguity. Basically, earlier advance ruling was saying कि भाई आप place of, you cannot decide on place of supply, but this is a significant move by the court. He says that you can decide on place of supply also because taxability is to be decided. That's why they have held that even place of supplies can be decided by advance ruling. This is a welcome step because many of the advance rulings have held that that is not in our purview and they have rejected these applications. But this is a very welcome judgment by the Kerala High Court, and now onwards we hope that advance rulings will follow. Now the question arises whether the Kerala High Court decision is applicable all over India or it is applicable only on Kerala. The normal perception is that ruling of a particular court is applicable on jurisdictional territorial waters, मतलब उस jurisdiction में applicable हो सकती है. So whether it will be applicable all over India. So when there is a no contradictory judgment by any high court all over India, then it is applicable on all the states. So I hope this Kerala judgment will be applicable all over India and उसके हिसाब से सभी advance ruling judgment देंगे. That is very, Mr. Hariharan, thank you. That is very important decision. Next, Karthik. Next question is from Mr. Ashish. No, sorry, Mr. Gopi Kishan. He is asking that in the case of Messrs. Latest Development Advisory Limited, the applicant is providing maintenance services as well as making water supply to the resident of RWA. And AAR Rajasthan held it a single supply, but according to me,
as an applicant, both the supply are not composite supply or mixed supply, and both are independent in nature, and value is also different. So according to me, it should be provided singly so that aggregate turnover would not cross threshold exemption limit of 20 lakhs. Yeah, that is we have dealt with this very aptly by the learned speaker. उन्होंने क्लियरली कहा कि भाई देखिए ये जो है देयर वर टू डिफरेंट एग्रीमेंट्स, आल्दो मेरे हिसाब से भी दो डिफरेंट एग्रीमेंट है तो दोनों डिफरेंट होने ही चाहिए और उसमें एग्जामिशन इज शुड बी अवेलेबल, बट since the advance ruling has held that, so the only option is either the SSC can move to a double AR, triple AR, so to file the appeal, or they can move another AR can be filed in another states. पर ये जो डिसीजन आया उन्होंने उनको माना कि दोनों क्लब होंगी और उसके हिसाब से ये डिसीजन होगा, परंतु ये जब अलग अलग डिसीजन है, अलग अलग एग्रीमेंट्स हैं, तो मेरे हिसाब से मेरे को भी यही लगता है कि ये अलग अलग होना चाहिए था, बट वी कैन नॉट हेल्प इट. बट यहाँ पे मैं क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि एडवांस रूलिंग के जो डिसीजन है दे आर एप्लीकेबल ओनली ऑन दोज एसएससीज व्हिच आर डीलिंग विद इट. इट इज नॉट एप्लीकेबल ऑल ओवर इंडिया. So that is a very good thing. It is applicable only on the SSC who has filed the application before advance ruling. It is not applicable on all the SSC. So they can follow as per on their own decision, and later on if litigation comes they can defend their case. Okay, next. Next question is from Mr. Purushottam. He is asking that commission and dividend paid to directors, will RCM be applicable on the same? On dividend, I think there is no tax applicable. And secondly is what is Karthik, dividend and Commission. On commission directly, if a commission is given as per terms and condition of the employment of the director, then it will not be applicable. But if it is paid outside this agreement, then it will definitely attract RCM and this tax will be payable on the same. Next. Next, Mr. Purushottam is again asking whether Claycraft India ruling has been challenged or not. As per our information, there is till date it has not been challenged, but it has been recently announced. So let us wait for some time, and we also think that it should be challenged in the challenge before triple AR or before the High Court. Next. Mr. Vijay is asking whether RCM is applicable on bonus paid to director. Bonus paid to director. Bonus is again from the salary only. It is paid to the salaried employees, and if it is a part of terms and condition of salaried employees, then it is. But if you follow Drafts India, then definitely it is applicable. Again, this has to be settled. This law has to be settled. Next. Next question is from Ms. Neetu. She is asking whether company paying tax under RCM now is eligible to avail credit, or whether the time limit to avail credit under section 16(4) will apply to tax paid under RCM. Definitely it will apply, because 16(4) that says that invoices pertaining to that financial year. So it is applicable, but recently we were discussing in office also that it is not applicable on RCM invoices, because RCM invoices are outside the purview, because some article has been written and it has said कि ये RCM पे applicable नहीं होगा. Next. Next question is by Mr. Girish Kulkarni. He is asking that what is the difference between in conjunction with each other and naturally bundled? Why separate two terms have been used in the definition? Do they have a different meaning? If we delete any of these terms, will the meaning of definition will still be the same or change?
He's giving an example like, is there any composite supply provided in conjunction with each other, but where it is not naturally bundled? It's a very technically question. It's a very naturally bundles mean when the two things, when two services or two supplies are so naturally bundled. Everybody is doing the same thing. Like if I go in a hotel and they have given a package to me that your this package says this room, along with room, the breakfast and dinner will be free. So this is a naturally bundled. It is been done by all the hotels that they were offering the package. So अगर वैसा है naturally bundled है, सभी लोग ऐसा ही कर रहे हैं, तो then it is naturally bundled and it will be done and उस पे आप कर सकते हो. तो ये जो है naturally bundled का concept ऐसा है. In conjunction with each other, now again very typical question. अगर वो दोनों साथ साथ हैं तो then मतलब मेरे ख्याल से नेचुरली बंडल और कंजक्शन इन कंजक्शन विच ईदर ये इनवेरिएबली एक दूसरे की जगह यूज होते हैं, तो दे आर आइडेंटिकल आई थिंक. नेक्स्ट Mr. Ashish is asking that then in the case of ISKCON surgicals, will they need to pay GST as they generally enter into agreement with their agent and directors and give them shape as per their convenience? give them a different shape as per their convenience. Talking about the agreement between the agent and directors. Agent and directors. For the agent, you have to definitely pay the tax. That is there is no. But for the directors, if you are paying salary to them, then it is a disputable item. Even Crafts India has given against decision, but normally everybody thinks that salary paid to the directors is outside the purview of the GST. It is not supply. That's why service tax is not GST is not applicable on the same. Even in the service tax era also, we have won the case in Kansara Engineers Private Limited, and there are a number of decisions which says that there will be no service tax on directors, salary paid to the directors. So उसको फॉलो करते हुए नहीं होगा. बाकी अगर आप उससे अलावा कुछ देते हैं, कमीशन वगैरह देते हैं, तो फिर दिक्कत आएगी. नेक्स्ट. Mr. Nishant is asking, our company has GST number of Gujarat for chemical unit and head office is in Mumbai, and we do not hold ID's GST registration, ISD registration. Okay. But has a demat account in Mumbai. What are the GST implications? Although it is not of the this question doesn't pertain to this webinar, but still मैं जो बताना चाहूंगा कि भाई जैसे ISD का अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं लिया है IS, तो जो आपकी हेड ऑफिस पे जो भी सर्विसेज आएंगी, इनपुट सर्विसेज, आप उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाओगे और उसकी क्रेडिट यहाँ पे नहीं मिलेगी. जो इनपुट सर्विसेज डायरेक्टली बिलिंग होती है और डायरेक्टली रिलेटिंग टू योर फैक्ट्री है, वो तो क्रेडिट आपको मिल जाएगी, बिलिंग वहां पे होनी चाहिए. परंतु अगर जो हेड ऑफिस से पे हो रही है और जो हेड ऑफिस पे आप ले रहे हो उस पे आपको क्रेडिट नहीं मिलेगी. नेक्स्ट. कार्तिक. No other query. Participants are just giving their regards. Thank you. एक कुछ क्वेरीज मेरे पास और आई हैं, एक मिनट. I am a registered taxpayer in GST while filing GST Tran 1. My consultant of VAT forgot to file VAT return for the last quarter. I filed GST Tran 1 before filing VAT return, taking into account the estimated credit to be carried forward. Now, what should be the probable solution? वो वैसा ही केस, सिमिलर केस हो गया जो एडवांस रूलिंग में है, द सिमिलर केस. अब अपने पास ऑप्शन क्या है? यू हैव नॉट फाइल द वैट रिटर्न बट यू कैन कैरी फॉरवर्ड. वो जैसे उन्होंने सर्विस टैक्स का वो रिटर्न नहीं फाइल कर पाए, रिवाइज नहीं कर पाए, बिकॉज 90 डेज लिमिट थी, वो रिवाइज नहीं कर पाए. इसी तरह से यहाँ पे भी आप वैट रिटर्न नहीं फाइल कर पाए तो भी आप कोर्ट में जा सकते हैं एंड होप फॉर द बेस्ट. फॉलोइंग दिस
हाईकोर्ट डिसीजन मेरे ख्याल से रिलीफ आपको मिल जाना चाहिए. Taxpayer who attempted to file but could not due to technical glitches in the common portal and doesn't possess digital evidence to corroborate the same. What is the course of action to be taken? It relates to again Tran 1. There are different decisions for Tran 1. Rajasthan High Court has consistently taken the view if technical glitches are there and you are not able to prove it that there were technical glitches and you are not able to file the Tran 1, then if you are not able to prove, then relief it is not granted to the SSC. Parantu Punjab and Haryana High Court again is given the verdict in favor of SSC that even if you have not filed Tran 1 and you have not attempted to file the Tran 1, then also it is a substantive right which cannot be taken away और ये relief मिलना चाहिए. तो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने बड़े लैंडमार्क अल्फोर्ड के केस में काफी लैंडमार्क डिसीजन दिया है, तो उसके बेसिस पे ये रिलीफ मिलना चाहिए. परंतु डिफरेंट हाई कोर्ट्स आर टेकिंग डिफरेंट व्यूज. तो लेट अस होप कि भाई द मैटर विल आई थिंक विल गो टू अपेक्स कोर्ट एंड देन इट विल बी फाइनली सेटल्ड. Third query, I am a supplier of drinking water in a sealed container. Whether I am eligible to any kind of exemption. To 12/2017 exemption notification which says packed water. मतलब other than packed water. तो packed water होगा तो उस पे GST लगेगा. 2201 में आपको टैक्स पे करना पड़ेगा. Thank you. Any other query, Karthik? No, sir. No other queries. Thank you very much. Thank you for raising so many queries. That means all are interested in this webinar. Thank you very much. Karthik, over to you. Thank you all our participants to join this webinar on recent rulings, which was taken by Akanksha ma'am, Pradeep sir and Preksha ma'am. You may connect to us on our website capradeepjain.com. For any further queries, we shall handle over there. One more question is asked by Mr. Hariharan. Yes. Sir, kindly explain the decision of Rajasthan High Court order given in the case of Shri Motors, where it was held that transitional credit is not allowed if no attempt was made to file GST Tran 1. Although I have not gone through the Sri Cement case, but normally Rajasthan High Court have taken many decisions in case. In one of my SSC also they have taken. They said if you go to the department and prove that you have made the attempt to file the Tran 1, and if you are able to produce the evidence that you have tried to file the Tran 1 online, but it could not be filed, then relief will be given to you. So what happens when we go to the department and they ask us the evidence, we produce them the evidence, then they ask from the portal, from Infosys people, whether the SSC has logged in and he has made attempt to file the Tran 1, and after report from them, they allow us, or they move to the High Court again and file their reply that SSC has not filed any, and they have not attempted and they have not filed. In one of my SSC's case, we are very even we have taken the screenshot, but this screenshot they say it is not visible, it is not legible. That's why we are not able to prove it, but still we are fighting that, although it is the proof is there and nobody has taken this screenshots. What is the meaning of screenshot? And you should ask with the Infosys people whether we have made the attempt to log in or not. And even the Punjab and Haryana High Court, when they have given this decision that this is a significant, this is your right, and you can file Tran 1. This is a substantive right, and it even if you have not filed the Tran 1, then also it will be allowed to you. It should be followed and the credit should be given. But Rajasthan High Court, in many cases, they have disallowed the
writ petition, they're saying that SSC has not attempted to file the tran. I hope, Hariharanji, I am able to clear your point out. That's all, sir. Thank you very much. And Hariharanji, you are very knowledgeable person and you know all the things. Still, you are asking. We should ask you the questions. Thank you very much. Thank you, everybody. Stay safe and stay together.